to schools, and in Balochistan 3 million, more than 3 million, in 31 lakh. So they are out of schools. But I'm still wondering that it's not a correct data, because day by day they are increasing. So this is very important that we address the issue of our children. If we will not, then I think I want to say that the education department, not in the college or university level, but from the school level, they are on it. Really, it's a disaster. On school level, we have to emphasize on so many things on that. I think you are all from college side, so today I'll talk on the college issues. The PACT is a very important institution, and I think I'm the one of that, because I was an MP since 2002 until 2018, and then 5 years gap. And last 5 years I was not an MP, and then again I came here, and then I became a Minister of Education. So this gap, I felt that when I'll come back and I'll see the situation, so it will be little more improved, and the things are going smoothly. But unfortunately, I felt as a Minister of Education, the education system is not improved. It should be like that. So the situation is hopeless, but I'm not hopeless. I'm very hopeful, and I feel that these kind of institutions, they need our support, because without training, without grooming yourself, you cannot be an update according to the situation and according to the era you are living. So मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने आज भी अपनी इस चीज़ को सीरियस ना लिया, so do not forgive us. आपने 12 days की ट्रेनिंग ली है, congratulations कि आपने इसको कंप्लीट किया. You're from very far areas, from all over Balochistan, and you get that chance. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि whenever you get a chance of learning, तो take it seriously. आप जो भी चीज़ हासिल कर रहे हैं, उसे इस तरह हासिल करें कि जैसे ये एक लाइक योर डिग्री थिंग, कि आपने बहुत सीरियसली इस चीज़ को करना है. बिकॉज अगर आप अपने आप को आज मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, सो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और बहुत पीछे रह चुके हैं. सो दिस इंस्टीट्यूशन जो कि ये कर रहा है, सोनू साहब थैंक यू, आप कर रहे हैं. आई वाज वन ऑफ द पर्सन पायनियर जो इस इंस्टीट्यूशन को हमने बनाने में किरदार अदा किया एज एम पी. मैं शुरू से अपनी पर्सनैलिटी लाइक दिस कि मैं शुरू से वेरी विजनरी, मैं आगे बहुत देखती हूँ. मैं आज नहीं देखती, मैं देखती हूँ आज जो वी आर डिसाइडिंग, सो वी आर डिसाइडिंग फॉर आवर फ्यूचर, वी आर डिसाइडिंग फॉर आवर जनरेशंस. तो हमें उस चीज़ को आगे देखना है. सो मैं समझती हूँ कि अगर आज इस इंस्टीट्यूशन ने 22 ईयर्स में बताया गया 2002 में ये बना है, तो 22 ईयर्स अगर इस इंस्टीट्यूशन ने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी भी मैं जब सोनू साहब से अभी बात कर रही थी, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि अभी तक हमें बहुत सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है. मेरा ड्रीम तो ये है कि आपके मेरे एजुकेशन मिनिस्टर की मेरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल से अटैच जितने डिपार्टमेंट्स, एंड देन कॉलेजेस एंड देन यूनिवर्सिटीज़ और पॉलिटेक्निक और अदर इंस्टीट्यूशंस, हम फुल फ्लेज सपोर्ट करें. बट विदाउट योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, हम जितनी भी फैसिलिटेशन दे दें, हम आपके बगैर कुछ नहीं. तो यू आर a human resource, especially as a teacher, as a lecturer, as a professor, you are a pride. मैं इसको इस तरह देखती हूँ, आप हमारे प्राइड हैं. और हमने जब तक इन चीज़ों को आपके साथ मिलकर, आपके मसलों के साथ, आपके इश्यूज के साथ बैठ के, घंटों बैठ सकती हूँ मैं आपके साथ और उस इन इश्यूज पर बात कर सकती हूँ, उनको कैसे हम एड्रेस करेंगे. Of course, I will inshallah in the future. But fortunately or unfortunately, 1.5 months I have taken my charge. लेकिन उसमें मुझे इतने ज़्यादा ये है कि सबसे पहले हमारे पे ये आ गया कि बजट सर पे है, और हमारी कोशिश है कि इसी ब्रीफिंग्स
تھوڑی لیٹ ہوتی جا رہی ہے. سو اٹس اے بگ ڈپارٹمنٹ. سو ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ میری کوشش ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بات وہ آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں میں اس کو ہم اپنے بجٹ میں ڈال رہے ہیں. اور میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب از اے ویژنری پرسن اینڈ ہی از ویری براڈ مائنڈیڈ پرسن اینڈ ہی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل فار ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. تو ان کی سپورٹ رہی اور انہوں نے ہمارے اس بجٹ کو جو میں نے بہت سے نئے آئیڈیاز دیے ہیں کہ اس سیکٹر میں جب تک ہم اپنے بجٹ میں پرائرٹی نہیں دیں گے ایجوکیشن کو, سو وی کی ناٹ ڈیولپ آور دس ڈپارٹمنٹ. کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی نہیں ہے, پرابلم یہ ہے, ایجوکیشن ہمیں وہ سپورٹ نہیں کر رہا. But they never ask what is the situation on the ground, what is the reality, what are the issues of the stakeholders. So I started this from school side and college side and university side. اور ہم نے ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھی اسکالرز والے ہال میں, ہم نے ان سے بات چیت کی. اور گرلس کالج میں ہم تمام آپ کے پرنسپلس کے ساتھ بیٹھے, پھر میں جتنے بھی کوئٹہ کے فی الحال, اور اس کے بعد ہم آگے بھی انٹیریئر میں بھی جائیں گے کیونکہ ٹائم کی کمی ہے اور ہمارے پاس ذمہ داری بہت زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی جو سوچ ہے, اور یقیناً بعض دفعہ میں اپنی زندگی میں حیران بھی ہوئی ہوں کہ میں نے ایسے شاید انسان سے بھی سیکھا جو ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوگا, لیکن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور بات کی, اور بڑے انٹیریئر کے لوگ, انہوں نے اتنی ٹو دا پوائنٹ اور اتنی کمپریہنسو قسم کی انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہم حیران رہ گئے. تو میری طبیعت ہے کہ اللہ فرام ایوری ون, جو چاہے کسی بھی پوسٹ پہ, ایون ڈرائیور ہے, کوئی نائب قاصد ہے, کوئی بھی پوسٹ ہے اس کی, مطلب چھوٹی مثالیں اس لیے دی کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بات بھی نہ کریں, لیکن اللہ فرام ایوری ون. تو ڈپارٹمنٹ از ہمارے سیکٹری صاحب ویری ویری نائس پرسن, اور پیج, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, وہ انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں صحت ہے, تو ہم چیزوں کو بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ فاصلے میں جو اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت ایمبیشیس ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی سیٹ بیک ملے اور آپ کو وہ چیز جو آپ اتنی محنت سے دن رات 18 گھنٹے کام کر کے آپ کو بنا رہے ہیں, تو اگر آپ نہ ملے تو آپ تکلیف ہوگی. میں نے کہا نہیں, میں اپنی کوشش ضرور کروں گی. یقیناً وہ میرا خیال رکھ رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ میری اسکیمات جو ہے پروو نہ ہوئی تو آپ کو ایک تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ آج ہمارا جانے کا بھی یہی ہے. سی ایم صاحب نے بلایا ہے تو ہم جائیں گے 4:30-5 بجے ہے پروگرام, تو ہم وہاں پر اپنی اسکیمات کے لیے فائٹ کریں گے کہ کس طرح کرنا ہے. ٹریننگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ ان ایجوکیشن ان ایوری فیلڈ. اگر آپ اپنی ٹریننگ کو آگے نہیں, اپنے لوگوں کو, جو کسی کو بھی, مجھے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, مطلب سڈنلی آئی ایم پی اور سڈنلی مجھے ایک ٹاسک دے دیا, یو آر منسٹر اور یو آر اسپیکر اور یو آر اینی ادر جو بھی ہے, چیئرمین اسٹڈی کمیٹی, وی نیڈ آلسو ٹریننگس اینڈ وی گیٹ ٹریننگس, بٹ انفارچونیٹلی وی نیور گیٹ ٹریننگ آف ایز اے فار منسٹر اور فار اسپیکر. تو وہ آپ بہت حیران ہو جاتے ہیں. ایک سمپل ایم پی کا کام ہے, ایک آپ کو ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. میں جب اسپیکر تھی تو میں نے کوشش کی تھی کہ اس طرح کی ٹریننگ کرواؤں. تو میں ویری مچ ود یوسف صاحب, ود جو بھی اس طرح کے سوچ کے لوگ ہیں, میں ان سب کے ساتھ ہوں. آپ لوگ ہمارا ایسٹ ہیں. مجھے بڑی اچھا لگا انہوں نے لیکچر میں مجھے سیکھ دیتے ہوئے کہا میڈم ایم فل کا ذرا سسٹم ذرا ایزی کر دیں. وہ اس لیے ایزی وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم اس میں بھی بیٹھیں گے, ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کی گائیڈنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کیا فیس کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیز کا مسئلہ ہوا, اساتذہ سڑکوں پہ تھے, بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, گورنمنٹ بھی ناراض تھی کہ لوگ پیسہ غلط استعمال کرتے ہیں, اور وہ بھی ناراض تھے کہ ہماری فیس کیوں ہوتی ہے. سڑک پہ بیٹھے تھے, بڑی پین ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی. کسی بھی معاشرے میں سینٹریز کے لیے سڑک پہ ہونا چاہیے, یہ میرے ذاتی طور پر سمجھتے ہیں. اور جب آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور فیل ہوتا ہے, تو تب میں ایکٹ ایز اے برج, میں نے بریجنگ کا کام
काम किया between the government and the universities, और उनकी भी गलतियाँ थी और हमारी नाराज़गी भी कुछ कहीं कहीं गलत थी, तो उस चीज़ को करके कायद किया कि हमें उनका कोई कसूर नहीं है, जो 1 to 15 हमारे लेक्चरर्स 17, 18, 19 है, अगर कोई गलती हुई है तो गवर्नमेंट साइड पर है तो हम उनसे अलग से बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड गेट देयर सैलरीज, क्योंकि 4-5 मंथ से अगर किसी की घर सैलरी ना जाए तो बड़ी तकलीफ की बात होती है. तो हम ये चाहते हैं कि हमारे उस्ताद को कम से कम वहाँ से एक सेटिस्फाई हो, क्योंकि उसका बेसिक राइट है. मतलब मुझे तो हैरत होती है कि उसको भी राइट हो सके, उनको डिप्राइव किया गया. तो ये सोच है मेरी, और मैं समझती हूँ कि हमें इस सोच को जो अपने स्टाफ को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मैं उसके बदले में मैं और मेरे CM और हमारी कैबिनेट और हमारे मेंबर्स आपसे ये चाहते हैं कि वी वांट अ रिजल्ट फ्रॉम यू, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हमारे जो बच्चे हैं वो किस लेवल के हैं, क्या आप अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से दे रहे हैं, नहीं दे रहे. दिस इज ऑल वी वांट फ्रॉम यू पीपल, कि ड्यूटीफुल हो जाएं, आप अपना काम करें, अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएं. मैं समझती हूँ कमरू साहब कि आप 2 तरह की ट्रेनिंग्स, जैसे आपने हमें शॉर्ट टर्म की है, तो हम अभी से इसके पे बजटिंग प्लान कर लेंगे पूरे ईयर में हम कितनी ट्रेनिंग करेंगे. मुझे नहीं पता आपने की कि नहीं, बट मेरे सजेशन है शॉर्ट कोर्सेज कितने होंगे और लॉन्ग टर्म कितने होंगे. उससे ये होगा कि हम अपना एक प्लान बना लेंगे, और प्रिंसिपल्स के लिए क्या होना चाहिए और IT टीचर के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ IT, और हम IT पे बहुत फोकस करना है. और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ IT टीचर्स ही को ट्रेन करें, मैं कहती हूँ हमारे जो हमारे पता नहीं अभी क्लर्क्स होते हैं या सुपरिटेंडेंट होते हैं, आगे जो भी सिस्टम होता है, हमें उन्हें भी ट्रेन करना. हमें हर चीज़ अभी हमें डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है. आपके इस इंस्टीट्यूशन में भी डिजिटल लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और IT लैब भी होनी चाहिए, ताकि अगर आपके पास ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं तो हम पूरा फुल फ्लैज सिस्टम आगे बढ़े. मैं काफ़ी उसके बाद मास्टर ट्रेनर्स और उधर ख़त्म ना कर दें. मैं हमेशा कहती हूँ हम जब भी ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, वहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी फॉलो अप, जैसे आपने कहा उनके फॉलो अप देखेंगे परफॉर्मेंस वाइज. मैं इस दैट इज़ द बेस्ट थिंग, आप मॉनिटर करें वो करें, बट मेक इट अ एलुमनाई, मेक इट व्हाट्सएप ग्रुप्स अभी तो इस तरह कहा गया है, और उसमें फेज वाइज करते हैं, बैच वाइज, यानी कि एलुमनाई है, दिस बैच इज एलुमनाई, तो सारे आ जाएंगे, लेकिन उसमें आप फेज में अभी ये ट्रेनिंग लेके गए हैं तो इस वाली ट्रेनिंग में ये बैच 1 है या 2 है, उस तरह कर दें. तो बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 एंड कंटिन्यूसली इन कंटेंट. आप उनके साथ जब कंटेंट में रहेंगे तो आपको वहाँ की भी उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, गेट टुगेदर रखें, लाइट रहें. हमने ज़िंदगी को बहुत सीरियस, बहुत सख्त कर लिया है. मैं कह रही थी जब हमारा बजट बन रहा था, मैंने स्कूल साइड पे कहा, मैंने कहा जब हम यंग थे और छोटे थे, बल्कि बचपन में तो हमारे PT शोज होते थे, फेस्टिवल होते थे स्पोर्ट्स के, गर्ल्स के, पूरे बलुस्तान के, पूरे कोयटा के हर मुकाबला होता था, डिबेट कॉम्पिटिशन. अभी तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता. चलो अपने स्कूल के अंदर होगा तो होगा, लेकिन और बलुस्तान लेवल और कोयटा लेवल में नहीं है. तो मैंने उसके लिए कहा कि आप इसमें फंड रखें. इसी तरह मैंने वज़ार साहब को कहा कि आप प्लीज़ आप कॉलेज साइड में रखें, आप बच्चों और टीचर्स को नेचुरल, हमने ना वो साइड बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, वो है ही नहीं. हम एज लाइक अ रिवॉर्ड देते हैं टू टीच एंड दे हैव टू लर्न एंड खुदा हाफिज़. तो हमें इसको एक खूबसूरत जो हमारे हमेशा से मान रहा है और पूरी दुनिया में है, वी हैव टू टेक दैट साइड ऑल्सो. तो ये मेरा है कि आप अपना ये एलुमनाई ज़रूर बनाएंगे. आज तक आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, उनके आपके पास तमाम रिकॉर्ड, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद आप अपने बैचेस बनाएं. उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उसी में से मास्टर ट्रेनर जो ये तो चाहिए होता है. अगर मैं आपसे एज ए मिनिस्टर रिकॉर्ड मांगती हूँ कि मुझे इस जगह पे इस शख्स की ज़रूरत है, तो अगर गवादर में बैठा हुआ शख्स है, मुश्किल में है, लोरेलाई में है, किला अब्दुल्ला में है, अब मुझे बहुत से लोगों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास मुझे नहीं पता कि कौन सा शख्स हो सकता है वो बेस्ट शख्स हो उस पोस्ट के लिए, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है. मेरे इर्द गिर्द जो 2-4 लोग होंगे वो मुझे बताएंगे इसको लगा दें, उसको लगा दें, बट आई डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट. तो
बैकग्राउंड भी आप बताएं कि who is who and who is specialized in which. तो आप में से जो भी इंटीरियर किलर से है, आपका भी उतना ही हक है एक अच्छी पोस्ट पे आने का जितना कि यहाँ कोयटा में बैठे हुए लोगों का सिफारिश है. सिफारिश कल्चर आई डोंट लाइक दिस. मुझे अपने यूथ में जो यंग लेक्चरर्स, मुझे अपने यंग लोगों पे अपने यूथ पे फख्र भी है, मुझे ये उम्मीद भी है कि आप एक मेहनत से अपना मकाम बनाएंगे. मैंने भी इसी तरह मेहनत अपनी लाइफ में की है और मुझे अल्लाह ताला ने इस मकाम तक ले आया. हालांकि 90s मिड 90s की बात है, मैंने माई मास्टर्स उसमें उस वक्त जो है मेरी बहनें मुझसे बड़ी हैं माशाल्लाह, उन्होंने उस वक्त पढ़ाया. मेरे पेरेंट्स ने जब को एजुकेशन का नाम लेना ही गुनाह था 80s. तो ये है अब रिटायर हो गई हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए. आप हैं मेल, आप अपने घरों के हेड हैं, खासतौर पे भाई की हैसियत से अपनी बहनों को बहुत सपोर्ट करें. ये वक्त है. हाफ बात है अगर आपके घर बैठी होगी आप कुछ नहीं कर सकते. एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई सी मकरान साइड पे जब हमारी बहुत सी बच्चियों ने कॉन्फ्रेंस में लाहौर गई तो लॉयर्स मैं आज द फर्स्ट लॉयर थी उस वक्त पश्तो में. हम 3 ही लॉयर्स थे. मिस आतिया भट्ट, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे, फौत हो गई. मेरी दोस्त थी, एक मिस फरहत थी, एक मैं थी. ये 98-99 की मैं आपको बात बता रही हूँ. हमने मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की. तो अब हम उस वक्त 1-2 थे. तो अब आप मैं देखती हूँ कि सिर्फ बलोच बेल्ट से इतनी बच्चियाँ, मुझे इतनी खुशी हुई, 3 लड़कियाँ आई. तो मेरे ख्याल में मैं भी हर जगह कहती हूँ कि एजुकेट them, either they are your daughters, either they are your sisters, or either even your wives. Educate them. और ये this is the only solution जो हम अपने जनरेशन को अगर हम सोचते हैं ना, देखो हम भी एक दिन जवाबदेह हैं अल्लाह के सामने. तो दिस इज द थिंग कि अगर हमने इसमें वो कर लिया, खुदा ने किसी बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को कोई तरीके से दूर नहीं रख सकता. और इंशाल्लाह हम अपना स्टिग्मा ख़त्म करेंगे. बलूचिस्तान में ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है. बलूचिस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं. और इंशाल्लाह ये फेज़ जो इधर बैठा है, हमें इसको आगे लाना है.